So, hello, my dear students. Welcome to Learning Continues. Hope you are doing well. So, today I shall start a new topic from your text, from your chapter 4, that is heat and temperature. And today's topic is heat. And later I shall discuss about methods of heat. So, today's topics are heat, equilibrium temperature, sources of heat, units of heat, general effects of heat. So let's start with heat. Now first question is, what is heat? Actually heat is a energy. Heat is an energy, and there are so many sources of heat energy. Suppose we know that the main sources of energy is sun. From sun or from sunlight we get energy, and after that, which is known as solar energy, and we convert the solar energy into mechanical energy, into various energy, electrical energy, mechanical energy, etc. are there. So there are some sources. Suppose firewood. Firewood is a source of heat energy. Then friction. If we rub our two hands together, then we can feel something in our hand, which is heat. And we the another sources of heat energy is fire. Then LPG, coal, wood, etc. are there, from which we can get the heat energy. Okay. One topic is there, equilibrium temperature. Now heat has a characteristics. It flows from a low temperature to a it flows from a high temperature object to a low temperature object. हीट क्या करता है, इसका एक खासियत ये है कि हीट एक गर्म या हॉट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, एक लो ऑब्जेक्ट यानी कि जो ठंडा है या नॉर्मल पोजीशन पे है उस पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है. और जिस वे में, जिस प्रोसेस में ये ट्रांसफर होता है उसको कहा गया है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. सपोज जब हम जो हमारे जो पॉट होते हैं या जहाँ कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते वो क्या होता है, गर्म होता है. तो अगर हम कुछ समय के बाद या कुछ चीज़ों से अगर हम इसको पकड़ के रखते तो क्या होता है, हमारे अगर सपोज ये एक पेन का हैंडल है और ये स्टील का एक हैंडल है, अगर हम इस हमारा हाथ क्या है एक नॉर्मल पोजीशन पे, अब इस पे अगर हम पकड़ेंगे तो हीट जो है वो हमारे हाथ पे आएगा. तो इससे पता चलता है कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट तक मूव करता है, फ्लो करता है. तो जिस प्रोसेस में ये करता है उसको कहा गया है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज यूनिट्स ऑफ हीट. वी नो दैट एवरीथिंग हैज ए यूनिट्स. सपोज फॉर लेंथ वी have centimeter, for time we have second, then for weight we have gram. Like that, heat also has a unit, which is calorie or joule. Joule, joule, which is denoted by J, and calorie, 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 which is denoted by CAL. So one equation is there, one relation is there. 1 calorie equal to 4.2 joule, or 1 joule equal to 1 or 4.2 calorie. So it's over. Now move to the next point, that is general effects of heat. In this topic we shall discuss about some changes. Suppose heat, first effect is heat bring about changes in temperature. Heat brings about the change in temperature.
तो क्या होता है, हीट क्या करता है, टेम्परेचर पे एक चेंजेस लाता है हीट। अब कैसे ये लाता है, सपोज क्या होता है, एक हम जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड फर्स्ट पॉइंट इज हीट ब्रिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक हीट यानी कि हीट एनर्जी जो है वो पास कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, यानी कि जो टेम्परेचर था इस बॉडी का और हीट पाने के बाद वो क्या होगा, उस पर एक चेंजेस आएगा। नेक्स्ट, हीट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। अब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब है कि एरिया देन लेंथ, ये होता है डायमेंशन, यानी कि एरिया, साइज का वो चेंजेस आता है। अब कैसे आता है, सपोज एक सॉलिड थिंग, सपोज एक आयरन, a piece of iron. If we beat the iron piece with a hammer, it produce heat and the iron piece will be increases. क्या होगा, अगर हम आयरन पीस को एक हैमर से बीट करते हैं तो क्या होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे वेल्डर लोग करते हैं, हम जानते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ पॉइंट्स और भी है, जैसे एक्सपेंशन इन सॉलिड। कैसे, सॉलिड पे जैसे समझाया था कि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल जो है वो पैक्ड होता है, उसका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, जैसे आयरन पीस। अच्छा, एक्सपेंशन इन लिक्विड। अब लिक्विड पे कैसे ये एक्सपेंशन होता है, लिक्विड पे क्या होता है, लिक्विड जो है उसका शेप एंड साइज, डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है, बस उसका एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, वो जिस पॉट पे हम रखेंगे उसी पॉट के हिसाब से वो क्या होगा, एक शेप, उसका एक शेप होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उस पे क्या था, मर्क्यूरी प्रेजेंट था। मर्क्यूरी क्या था, एक केमिकल पाउडर टाइप सब्सटेंस था जो क्लिनिकल थर्मोमीटर पे था। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या करते हैं, हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब सपोज इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोगों ने मुंह में लिया है, उसके बाद क्या होगा, कुछ समय रखने के बाद वहां पे मर्क्यूरी जो है वो अप होगा। ये क्यों होता है, ये हीट पाने के कारण ये होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन इन लिक्विड भी हो गया है। ठीक है, और इस एक्सपेंशन इन लिक्विड का और एक एग्जांपल, सपोज मिल्क या वाटर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पहले जो पानी या दूध जो था वो नॉर्मल पोजीशन पे था, अब हीट पाने के कारण क्या होता है, वो उबलने लगते हैं। वो क्या होता है, उसका जो एक्सपेंशन होता है, यानी कि वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, और ये क्या होता है, ऊपर आने लगता है, यानी कि पानी जो नीचे था एक यूटेंसिल पे, वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। ये होता है वाटर या मिल्क जब बॉयल करते हैं हम, तो ये होता है। अच्छा, एक्सपेंशन इन गैसेस। सेम gases has not the fixed volume, shape or size, but it has a volume if we enclose it in a container. अगर हम गैस को बंद करके रखते हैं तो वहां पे वॉल्यूम नजर आएगा। अब इस पे एक्सपेंशन कैसे होता है, गैसेस पे एक्सपेंशन कैसे होता है, सपोज क्या होता है, जो बैलून, सपोज एक बैलून है, उस पर हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, और उसके कारण क्या होता है, एयर जो है वो हीटेड होके हमारे मुंह से क्या होता है, बैलून के अंदर जाता है, और जिसके कारण वो बैलून के अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसका जो वजन है वो कम हो जाता है, यानी कि हीट होने के कारण वो एयर क्या होता है, कम वजनदार होता है। इसके लिए क्या होता है, बैलून हम जब छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा बहुत उड़ता है, यानी कि वो आउटर, यानी कि बैलून के बाहर जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल से वो क्या है, हैवी है, और बैलून के अंदर जो है एयर मॉलिक्यूल वो क्या है, डेंस, यानी कि वो उतना वजनदार नहीं है, इसलिए क्या होता है, वो उठता है।
और ये हीट होने के कारण, हीट देने के कारण वो गैसेस में क्या होता है, हीट जो है वो इसके कारण वो बैलून इंक्रीज होता है। तो ये गया है एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस में वो कैसे हीट के कारण एक्सपेंशन होता है, इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, दैट इज हीट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टेट्स। We have mentioned that there are three matter of states. One is solid, one is liquid, and another is gases. अब heat bring about changes in state. अब states पे कैसे changes आता है? Suppose heat पे कैसे आता है? बॉयल कर रहा हो, सपोज मैं कुछ वाटर या मिल्क जो है वो बॉयल कर रहा हूँ, क्या होगा? पहले ये लिक्विड था, मिल्क या वाटर जो है वो लिक्विड था। अब उस पे हीट देने के कारण क्या हुआ है, कुछ समय रखने के बाद वो बॉइलिंग करना शुरू करेगा, उबलने लगेगा, और उबलते उबलते एक समय क्या होगा, वहां पे इवापोरेशन होगा, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये इस पॉइंट में समझा गया है कि हीट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टेट, स्टेट में ये चेंजेस आता है। तो फॉर टुडे इट्स ओवर, स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर न्यू अपडेट। I shall discuss methods of heat, that is heat transfer, that is we have conduction, convection and radiation. I shall discuss the three methods of heat transfer with application. So stay connected with me, and if you are new in my channel, press the bell icon, subscribe my channel, and if you like my video, then press the like button. Don't forget to leave a comment, and thanks for watching. Stay connected with me, stay safe. Thank you.